Hello kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is manufacturing industries and आज का जो session है वो है session number 5. So we'll start with chemical industries. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. It contributes approximately 3% of the GDP. जो chemical industry है इंडिया में वो fast growing जो इंडस्ट्री है उसमें आता है एंड बहुत डाइवर्सिफाई है. इस इंडस्ट्री में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी का, जो इंडिया की जीडीपी है उसका अप्रॉक्सीमेटली 3% ये कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है वो. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. तो ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में, अनऑक्युपाई करता है 12th प्लेस. अगर हम लोग देखें वर्ल्ड में तो इट कम्स एट द 12th प्लेस इन टर्म्स ऑफ द साइज अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो. And it also comprises both large and small scale manufacturing units हैं जो, and rapid growth जो है that has been recorded in both जो inorganic है and organic sector. तो दोनों sectors में ही rapid growth जो है वो देखी गई है. Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuff, drug and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries और petrochemical plants. Organic chemicals जो हैं वो उसमें included होते हैं जो petrochemicals हैं जो यूज़ किए जाते हैं for manufacturing जो होती है synthetic fiber की, synthetic rubber की, प्लास्टिक की, जो डाई स्टफ है उसकी, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स की. सो इन दिस ऑल जो पेट्रोकेमिकल्स है वो यूज़ किया जाता है. एंड ऑर्गेनिक जो केमिकल प्लांट्स हैं वो लोकेटेड हैं नियर जो ऑयल रिफाइनरी होती हैं या फिर जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं उसके पास ही लोकेटेड है. द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer markets. जो chemical industry है वो अपनी खुद की एक largest जो consumer है वो है, because जो basic chemicals हैं they undergo processing, उनसे further जो produce है वो बनता है, जो other chemicals हैं वो बनते हैं और वो use होते हैं in other industrial जो application है या फिर agriculture है or directly for consumer markets. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, which is mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. तो जो fertilizer industry है जो काफ़ी बड़ी industry है and वो जो है वो centered करती है around the production of जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जिससे मेनली यूरिया आता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं एंड अमोनियम फॉस्फेट है विच इज़ DAP, एंड जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है एंड पोटैश है. The third, that is potash, is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो जो थर्ड जो हमने बात करी पोटाश की वो entirely imported है हमारी कंट्री में, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिजर्व्स जो कमर्शियली यूज़ किया जा सके. तो पोटाश का हमारे पास कोई भी कमर्शियली यूजेबल नहीं है यहाँ पे रिजर्व्स और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म. सो दैट इज वाई जो पोटाश है वो एंटायरली इंपोर्ट होता है. India is the third largest producer of nitrogenous fertilizers. At present, there are 10 public sector undertakings and 1 in cooperative sector at Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India. इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स है उसमें. एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड एक जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो है हजीरा जो गुजरात में पड़ता है under the Fertilizer Corporation of India. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala contribute towards half the fertilizer production. जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड हुआ टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में.
एंड जो गुजरात है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. Other significant producers are Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradesh, and Karnataka. So these are all the other states जो हैं significant producers. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams, and for other commercial establishment. तो जो सीमेंट है बच्चों, आप लोगों को पता होगा सीमेंट हम लोग देखते हैं जो घर बनता है वहाँ पे सीमेंट यूज होती है. अगर कोई मॉल बन रहा है वहाँ पे भी सीमेंट यूज होती है, फैक्ट्रीज में यूज होती है. तो सीमेंट जो है वो एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए. जिससे हाउसेस बनते हैं, घर बनते हैं, फैक्ट्रीज हैं, देयर ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स. तो इन सारी चीजों में जो है वो सीमेंट का यूज होता है. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर्स आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. तो ये जो इंडस्ट्री है सीमेंट की इंडस्ट्री, उसमें जो चीजें रिक्वायर होती है वो बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स हैं. जैसे जैसे उसमें यूज होता है लाइमस्टोन, सिलिका है, एल्यूमिना है एंड जिप्सम है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो यूज होती हैं इन सीमेंट इंडस्ट्री. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर जो है दैट इज नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. तो इसके जो हमारी लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम है, उसके अलावा कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर है वो उसको भी जरूरत पड़ती है. एंड ऑल्सो वी नीड द रेल ट्रांसपोर्टेशन. The first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. तो जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो सेटअप हुआ था चेन्नई में एंड वो सेटअप हुआ था 1904 में. इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्री है उसने काफी एक्सपेंड किया है. There are 128 large plants and 332 mini cement plants in the country. India produces a variety of cement. तो अगर हम लोग देखें कि कितने सीमेंट प्लांट है हमारी कंट्री में, देर आर 128 जो हैं वो लार्ज प्लांट्स हैं और जो छोटे प्लांट हैं वो हैं 332. एंड इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है वेराइटी ऑफ सीमेंट. सो देयर डिफरेंट डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी एंड ऑल्सो जो क्वालिटी है वो भी डिफर करता है. तो इंडिया प्रोड्यूस करता है वेराइटी ऑफ सीमेंट्स. Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia, apart from a large demand within the country. जो improvement है quality में जो improvement हुआ है that has found a produce a readily available market जो है वो मिल गया है which is in East Asia, Middle East, Africa and South Africa. apart from जो हमारी खुद कंट्री में है उसकी भी एक लार्ज डिमांड है. So improvement in the quality जो है that is always good because the other countries they would want to have our product. This industry is doing well in terms of production as well as export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. ये जो industry है that is doing well अगर हम लोग देखें in terms of production as well as export की अगर हम लोग बात करें तो this industry is doing quite well, बहुत अच्छा कर रही है. एफर्ट जो है आर बीइंग मेड टू जनरेट जो एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड है एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री की जो एडिक्वेट जो डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई है उसका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सेशन है उसमें हम लोगों ने इस सेशन में कुछ जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.